Today we are going to start with a poem named A Legend of the Northland by Phoebe Cary. The author is Phoebe Cary. Phoebecary. Okay, so before explaining the poem, I will give you a short introduction to this poem. Now, A Legend of the Northland is a ballad. ये जो पोएम है वो है ballad. BALLAD. Now what is a ballad? The ballad is a poem narrating a story in short stanza. Ballad उन पोम्स को कहते हैं जो कोई स्टोरी नरेट कर रही होती है, या फिर जो ऑथर होता है, जो पोएट होता है, वो कोई स्टोरी बता रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ अ पोम in short paragraphs. As you can see, there are 16 paragraphs. So 16 paragraphs में एक story narrate करी गई है. That is why it is a ballad. BALLAD. Ballad is such a kind of poem which tells a story in short stanza, and in the poem all the stanzas comprises 4 lines. Now ballad उसी poem को बोलते हैं जो शॉर्ट स्टैंजाज में हमें कोई स्टोरी नरेट कर रही होती है, और ईच स्टैंजा कंटेन्स 4 लाइन्स. एंड एज यू कैन सी, हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं. बैलेड आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड एंड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. फोक कल्चर इज़ अ स्टोरी ऑफ एन एरिया एंड इज़ नोन एज बैलेड. नाउ ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, क्यों इस पोम को बैले बोलते हैं? क्योंकि ये फोक कल्चर है. जो कभी भी कोई फोक कल्चर की कोई स्टोरी होती है, फोक मतलब क्या होता है? FOLK. फोक कल्चर की स्टोरी मतलब जो ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है, उन स्टोरीज़ को फोक टेल्स कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो बैलेड की जो पोम होती है वो कैसी स्टोरीज़ नरेट करती है? फोक टेल्स नरेट करती हैं. The story of the Northland area, the area which is near to the North Pole. Now Northland कहाँ है? North Pole के पास है. ये स्टोरी किस Northland की स्टोरी है, but Northland means the area in the northmost part of the earth, that is near the North Pole. Legend means a historical story, one which is very old and has been passed on from generation to generation. Now इसका टाइटल अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड क्यों है? इस पोम का टाइटल लेजेंड का मतलब होता है कोई ऐसी हिस्टोरिकल स्टोरी जो जनरेशन टू जनरेशन, कई सदियों से जनरेशन टू जनरेशन से मुँह जवानी पास हुई है एक दूसरे के थ्रू. और नॉर्थलैंड नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ नियर नॉर्थ पोल. तो ये स्टोरी एक लेजेंड स्टोरी, एक हिस्टोरिकल स्टोरी है अबाउट द नॉर्थलैंड एरिया. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. So in this video I will explain you 3 paragraphs. So first we will read those 3 paragraphs and then I will explain you paragraph wise. Away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift Rhiannon to the sledges when it snows, and the children looks like bears' cub in their funny fury clothes. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I'll tell you tale to you. So the first paragraph says, away the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So जो region है North Pole के पास, the duration of the day is very less because the position is such that the sun rays reach for very less time. Now यहाँ पे कह रहे हैं पहली लाइन में तो where the hours of the days are few, जो सनरेज़ हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, बहुत कम समय के लिए वहाँ तक जाती है नॉर्थ पोल तक. तो इसीलिए दे आर सेइंग कि जो ड्यूरेशन है डे की वो काफ़ी कम है, बिकॉज द सन रेज कैन नॉट रीच फॉर अ वेरी लार्ज टाइम देयर.
When this area is experiencing winter season, the duration of night is very long and the daytime hours are very less. So जब winters आते हैं तो बेसिकली वहाँ पे नाइट्स बहुत लंबी होती हैं और जो ड्यूरेशन ऑफ डे होता है वो बहुत छोटा होता है. इन द लाइन फोर्थ लाइन दे रेफर टू द पीपल हु लिव इन दिस रीजन. तो दे आर रेफरिंग टू द पीपल जो वहाँ पे रहते हैं. इट इज़ रिटन दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. So they are referring to the people who are living in that region. The poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them through. क्योंकि ड्यूरेशन जो नाइट की ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा होती है कि लोग वहाँ पे सो भी नहीं पाते हैं. He wants to emphasize on the fact that the duration of the night is very long. और इस पूरे पैराग्राफ से पोएट हमें इस पे एम्फेसाइज दिलाना चाहता है, इस पे एम्फेसिस दिलाना चाहता है इस फैक्ट पे कि नाइट्स जो होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती है. द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज़ वेरी लॉन्ग देयर. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा where they harness the swift Reander to the sledges when it snows. Now sledges is a vehicle on runners for conveying loads of passengers over ice or snow, often pulled by draught animals. Now as you have seen many times, जो Santa Claus होते हैं वो रियंडर्स में आते हैं. रियंडर इज़ एन एनिमल. तो रियंडर एनिमल होता है और वो किस व्हीकल से बंधा होता है, वो स्लेज होती है, वुडन का बना हुआ होता है, दैट इज़ अ स्लेज. सो स्लेज बेसिकली यूज़ होती है स्नोई एरियाज़ में ट्रैवल करने के लिए. तो जो स्नोई एरियाज़ में ट्रैवल करने के लिए व्हीकल तो स्लेज होती है, बट उसको कोई ना कोई तो उसको खींचता होगा ना, जिससे कि वो पुल करता होगा जिससे कि वो चले. तो वो रियंडर्स होते हैं, बेसिकली एनिमल्स होते हैं एंड मोस्टली रियंडर्स होते हैं. सो यहाँ पे उन्हीं स्लेजेस की बात करी जा रही है. लेट्स रीड फॉर. टू हार्नेस मीन्स टू टाई द रियंडर्स विद अ रोप टू अ स्लेज सो दैट इट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. हार्नेस मतलब क्या होता है, एनिमल को या रियंडर को रोप से बांधना टू द स्लेज, दैट इज़ नोन एज हार्नेस. किसी चीज़ को बांधने को हार्नेस बोलते हैं. तो यहाँ पर रियंडर को बांधा जा रहा है रोप से टू अ स्लेज सो दैट वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो पाए. स्विफ्ट का मतलब होता है समथिंग विच रन्स वेरी फास्ट. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. To the sledges when it snows and the children look like beer cups in their sunny fury clothes. So यहाँ पे alliteration यूज़ हुआ है सेकेंड स्टैंजा में. alliteration बेसिकली जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का साउंड 2 या 3 वर्ड्स जो क्लोजली पुट होते हैं उसमें आता है तब उसको हम एलिटरेशन बोलते हैं. व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? A to Z में देयर आर 5 वॉवल्स A E I O U. रेस्ट जितने भी लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइन लुक्स लाइक बियर कप्स. सो लुक्स लाइक में L का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एलिटरेशन यूज़ हुई है. फनी फ्यूरी क्लोथ्स तो F का साउंड आ रहा है सो F तो यहाँ पे एलिटरेशन यूज़ हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पर सिमिली भी यूज़ हुआ है. वेयर सिमिली इज़ यूज्ड, एज यू कैन सी चाइल्ड लुक्स लाइक बियर कप्स इज़ कंपेयर टू अ वेफर. नाउ सिमिली होती क्या है? सिमिली वो होती है जब हम कंपेयर करते हैं किसी 2 चीज़ों को एज या फिर लाइक लगाकर. जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स. तो चिल्ड्रन को यहाँ पर बियर कप से कंपेयर किया है तो हमने यहाँ लाइक का यूज़ किया है. या फिर अगर हम एज का यूज़ करते तो वो सिमिली मानी जाती. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करी है? सिमिली यूज़ करी है. ठीक है, इन द प्रीवियस पैराग्राफ भी एलिटरेशन ही यूज़ हुई है. इन स्टैंजा 1 जहाँ लाइन नंबर लास्ट दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. सो TH थ का साउंड आ रहा है.
ठीक है, क्लोजली पुट वर्ड्स में थ का साउंड आ रहा है बार बार एक ही लाइन में, तो यहाँ पर एलिटरेशन यूज़ हुई है. ओके, लेट्स कम टू द पैराग्राफ नंबर 2. वी वर डूइंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. नाउ दिस पैराग्राफ मीन्स दैट द नॉर्थलैंड रीजन एक्सपीरियंस सीवियर कोल्ड कंडीशंस. तो नॉर्थलैंड जो है वहाँ पे काफ़ी कोल्ड होता है, बहुत ही सीवियर कोल्ड कंडीशंस वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं लोग. इट इज़ अ स्नोई एरिया. स्नोई एरिया है क्योंकि बहुत कोल्ड होती है, वहाँ पे सनरेज पहुँचती नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अ स्नोई एरिया. सो रिएंडर इज़ एन एनिमल विच इज़ फाउंड इन दिस पोलर रीजन. कुछ ही एनिमल्स होते हैं जो ऐसा इन्वायरमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं, तो रिएंडर्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं. पीपल tie the reanders to the sledges and then the reanders pull the sledge. तो लोग जो होते हैं वो reanders को हार्नेस कर देते हैं sledges से और फिर reanders sledge को पुल करते हैं. He adds that the children looks like young ones of a bear because they wear funny looking clothes made of fur which is like the furry skin of a bear. तो लास्ट 2 लाइन्स में चिल्ड्रन को बियर कब से कंपेयर किया है. बियर कब्स, जो बेयर होते हैं उनके बेबीज़ आर नोन एज कब्स, तो उनको चिल्ड्रन से कंपेयर किया गया है क्योंकि कितनी कोल्ड होता है. रीजन इज सो कोल्ड दैट चिल्ड्रन यूज टू वेयर वेरी फनी क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर, सो दे लुक लाइक बेयर कब्स. ओके, लेट्स कम टू द स्टैंजा नंबर 3. They tell them a curious story. I don't believe it's true. Curious मतलब strange. And yet you may learn a lesson if I tell you tale to you. Okay, in stanza 3 again alliteration is used. ठीक है, पूरे पोम में बेसिकली alliteration, repetition and simile ही यूज़ हुई है. ठीक है, तो stanza 3 में भी alliteration यूज़ हुई है. फर्स्ट लाइन पहले में दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, तो टी का साउंड उभर कर आ रहा है इस लाइन में, प्रोमिनेंटली आ रहा है, सो एलिटरेशन इज़ यूज्ड हेयर. देन लाइन नंबर 3 येट यू मे लर्न अ लेसन, सो वाई का साउंड आ रहा है. देन लर्न लेसन में एल का साउंड आ रहा है. They are closely put words and L sound is prominent here. Then in the last line, if I tell the tale to you, so tell the tale to, so T का sound आ रहा है यहाँ पे, so यहाँ पे भी alliteration use हुई है. This stanza means that in the first line they refer to the parents or the elder and them refers to the children of the younger generation. So यहाँ पे बोल रहे हैं दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, तो दे यहाँ पे बोला जा रहा है पेरेंट्स को या फिर या एल्डर जनरेशन को, और देम कौन है यहाँ पर, चिल्ड्रन है यहाँ पर. द एल्डर्स ऑफ द नॉर्थलैंड रीजन टेल अ स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द यंगर जनरेशन. द पोएट सेज दैट he doesn't think that the story is true, but if he tells the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it. The story gives an important message. सो पोएट यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ये जो स्टोरी वो बताने जा रहे हैं वो सच में ट्रू होगी या नहीं है, बट उन्हें लगता है कि अगर ये रीडर्स जैसे कि हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई लेसन मिलेगा. सो दैट इज़ द रीज़न द पोएट इज़ राइटिंग दिस poem in a form of a story. So this is the main reason he wants to tell us this tale so that we can learn a lesson from it. Okay, so that's it for the video. I will explain you further stanzas in the next video.